Hello students, very good morning. Let's start the same lesson, an astrologer's day. This is second part. In the first part, we have seen an equipment of astrologer. Then in the next stanza, we have seen appearance of an astrologer, description of marketplace, soft skills of astrologer, and now we will see astrologer's past life, his previous life in this lecture. Here, writer R.K. Narayan has used a flashback technique. We will go in his past life. So let us see the next part of this lesson. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield, and ancestral home. But that was not to be. So here, writer says that if he had left the village without any previous thought or plan. It means there was not any planning to leave the home. There was not the planning of an astrologer to leave his village, home, or his original place. But still, but he had to leave that place. Why? Of course, something happened in his life, and that's why, without any previous thought or the plan, he left his village. बिना बताए, किसी को बिना बताए उन्होंने अपना विलेज छोड़ दिया. वैसे उसका कुछ प्लानिंग नहीं था, लेकिन कुछ तो हुआ है उसके लाइफ में, और इसकी वजह से उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ा और उन्होंने विलेज छोड़ दिया. एंड इफ ही वुड नॉट लीव दैट विलेज, देन व्हाट ही हैड डन देयर. अगर उन्होंने विलेज नहीं छोड़ा होता तो वो क्या करता उधर. Of course, writer explained here that he work of his forefathers. He would start the work of his forefathers. What was the work of forefather? That is tilling the land, living. वो अपने लैंड में मेहनत करता, उधर ही रहता. मैरी मीन्स किसी के साथ, किसी वाइफ के साथ, किसी लड़की के साथ शादी करता. राइपनिंग हिज कॉर्नफील्ड, अपने खेती में काम करके अपने जो एंसेस्ट्रल होम है, जो उसके फोर फादर्स का, पूर्वजों का जो होम है, उधर वहीं रह के अपना गुजारा करता. लेकिन वो सब नहीं हुआ, क्योंकि समथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ, एंड दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. He had to, it is a modal auxiliary. Had to means compulsion. Something happened in his life, so it became compulsory to him to leave the home, and so without telling anyone he left that village. He could not rest till he left behind a couple of 100 miles. See, he continued his journey till he crossed a couple of 100 miles, means he went far away from his village. Why? Of course, he wanted to forget all his past life. He wanted to go away from his past life, and that's why he traveled, or he went away from his village near about a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal. एक विलेजर के लिए ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा डिस्टेंस था. As if an ocean flowed between, because he wanted to forget his past life. He wanted to go away from his past life, and that's why he went away a couple of 100 miles. अपने previous life का जो भी रिलेशन था उससे उसको छुटकारा चाहिए था. कुछ तो हुआ था उसके लाइफ में, और इसीलिए इतना लंबा सफ़र उन्होंने किया और
अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाकर वो अपना जिंदगी का गुजारा करने लगा. He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human ties. Now, what was the type of his work when he came in another town? He left his home. अपना घर छोड़ा उन्होंने, अपना विलेज छोड़ा, और अभी बाहर आके उन्होंने क्या काम चालू किया? He had a working analysis of mankind's trouble. He started his business, that is an astrologer. He became an astrologer. And while doing this work, he was analyzing mankind's trouble. He was analyzing means he was thinking about mankind's troubles. What are the different troubles of mankind? He was searching the cause of that, and he was giving or paying deep attention towards the problems of human being. So there are some common problems like marriage problems, money problem of the people, and the tangles of human ties. He was getting the correct idea of human beings' mind, human beings' relations, and he was very sharp in understanding other person's mind, and that's why perhaps he could run his business very well, though he did not know the science of astrology. Long practice had sharpened his perception. Perception means receiving power. Long practice, he did a very good practice. He did a good practice for a long period of time, and that's why his mind get sharpened, and so his perception became very sharp. उसको तुरंत समझ में आता था कि क्या प्रॉब्लम है किसी का, और वो अपना जनरल आर्गुमेंट करके, जनरल अपना इंटेलेक्चुअल पावर यूज करके वो सभी को गेस करता था किसी के लाइफ का प्रॉब्लम. एक्चुअल उसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं था. Within 5 minutes, he understood what he was wrong. What was wrong? So within 5 minutes, he was understanding. He was reading the mind of his client or the person who was sitting before him to see the fortune. 5 मिनट के अंदर अंदर वो आगे वाला जो सामने वाला आदमी था उसको पहचानता था, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, वो तुरंत पहचान जाता था. ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन. एंड व्हाट वाज द फीस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर? 3 पाइस पर क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन का 3 पाइस. अभी पाइस क्या है? पाइस इट इज अ करेंसी. एक क्वेश्चन के लिए वो 3 पाइस लेता था. Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. What was his practice? Let us say he was a very cunning man. When client was before him, he was not opening his mouth instantly. He was letting that client to talk at least 10 minutes, and he was listening to his client very carefully, so that he was getting the idea of his mind. He was getting number of clues of his problems, and according to that he was reading his mind and giving the advices or the answers to the questions of his client. 10 मिनट के लिए वो क्लाइंट को बोलने के लिए देता था. उसके पहले कभी अपना मुंह नहीं खुलता था. तो 10 मिनट में उसको आगे वाले का नेचर तुरंत पता चलता था, और उसका माइंड वो आराम से रीड कर सकता था, और उसी के हिसाब से वो उसको एडवाइस करता था. एक्चुअल उसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसके साइंस का कुछ भी नॉलेज नहीं था. When he told the person before him, gazing at his palm, तो वो क्या करता था? उसके पाम मतलब जो हाथ, अपना जो हाथ रहता है, अपना जो पाम रहता है हैंड का, उसको गेज करता था, उसको अच्छे से देखता था. And now some general statements which he was giving to everyone. क्योंकि वो गेस करता था, उसको एक्चुअल नॉलेज नहीं था एस्ट्रोलॉजी का, तो he was just guessing the problems of human being. And what were his guessings, general guessings that are given here in inverted commas.
So the first guessing of an astrologer, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. तो क्या जवाब देता था, क्या एडवाइस करता था? तो पहला जनरल स्टेटमेंट इसका है, मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. आप तो बहुत मेहनत लेते हैं लेकिन आपको फुल रिजल्ट नहीं मिलता है उसका. अभी ये देखो, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि किसी को भी सक्सेस मिलता है वो तो आसानी से नहीं मिलता है. हम बहुत सारी मेहनत करते हैं उसके बाद में अपने को मिलता है. तो क्या होता है, कई लोग जल्दी वो एफर्ट्स लेना छोड़ देते हैं, तो कई लोग लास्ट तक एफर्ट्स लेते हैं. जो छोड़ देते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. तो ये कॉमन उन्होंने जवाब दिया, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता है. तो हर किसी को ये लगता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजर, ऐसा उनका मानना था. लेकिन वो असल में वो नहीं था, वो तो लोगों को फंसाता था. 9 out of 10 वेयर डिस्पोज्ड टू अग्री विथ हिम. तो अगर 10 आदमी आ गए तो 10 में से 9 लोगों को तो वो मतलब एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि हर किसी के साथ में तो ये होता ही है. तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे और उनको लगता था, अरे वाह एस्ट्रोलॉजर कितना होशियार है. और ही क्वेश्चनड. अभी दूसरा एक उसका जनरल स्टेटमेंट था, वो कौन सा है, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन एज डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू. तो किसी को ये जवाब देता था तो किसी को दूसरा जवाब देता था. अभी देखो इन्वर्टेड कॉमा में दूसरा जनरल स्टेटमेंट है, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव. आपके घर में ऐसी कोई वुमेन है, शायद से आप मतलब आपका रिलेशन उसके साथ आपका रिलेशन नज़दीक वाला नहीं है, दूर की, आपके रिलेशन में दूर की होगी वो, लेकिन उसका ओपिनियन आपके बारे में ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग यू. ऐसा वो जनरल स्टेटमेंट किसी को करता था. अभी किसके ऊपर निर्धारित है, वो सामने वाला का सुनता था और उसका माइंड रीड करता था और उसी के हिसाब से कौन सा जवाब देना है वो डिसाइड करता था. मतलब ये सब गेसिंग वर्क है. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर. नहीं तो किसी को, अभी तीसरा जवाब उसका तीसरा जनरल स्टेटमेंट है, वो कौन सा है, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. किसी किसी का अगर उसको ऐसा पता चलता है कि आगे वाला आदमी का कैरेक्टर कुछ गड़बड़ा है, कुछ गड़बड़ है, कन्फ्यूजिंग कैरेक्टर है, तो उसको क्या जवाब देता था, योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब आपके नेचर की वजह से आते हैं. तो हर आदमी का नेचर में कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है. कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट है. हाँ, जैसे हम खुद को जब मेडिटेट करते हैं, हम खुद के बारे में खुद का एनालिसिस करते हैं, तो हमको भी पता चलता है, अरे मेरी ये गलती हो गई, मेरे में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा हम बात करते हैं ना. तो वैसे हर किसी को ऐसा लगता है, अरे हाँ मेरे में भी तो कुछ प्रॉब्लम है. तो ये भी जनरल स्टेटमेंट हो गई. ये सब काम एस्ट्रोलॉजर का उसके गेस के ऊपर खाली चल रहा है. अभी देखो उसका जो जनरल स्टेटमेंट है ये सब इन्वर्टेड कॉमास में दिए हैं. अगर आपको एक्टिविटीज़ में इसके बारे में पूछा तो आपको उसी खाली वही सेंटेंस उठा के लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा डाल के. सो ऑल दीज आर जनरल एग्रीमेंट्स. वंस अगेन आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? अभी देखो, अगर ऐसा है तो बिना सैटर्न की मदद से, मतलब शनि ग्रह प्लैनेट को अभी लिया इसमें, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. यू हैव एन इम्पेशियस नेचर. इम्पेशियस नेचर मीन्स इम्पल्सिव नेचर, मतलब बहुत जल्द में कोई ऐसा सोचता है और फटाक से काम करता है, उसको बोलते हैं इम्पेशियस नेचर. ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बिना सोच समझ कर जल्दी से काम करते हैं, जल्दी से बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पेशियस नेचर. आपका नेचर कैसा है, इम्पेशियस है, मतलब इम्पल्सिव है. एंड अ रफ एक्सटीरियर. आपका स्वभाव कैसा है, रफ है, रफ टफ है, किसी को भी कुछ भी बोल पड़ते हो. दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us love to think that he has a forbidding exterior. ऐसा आदमी को लगता था. फॉरबिडिंग एक्सटीरियर मतलब अपना जो नेचर है वो नेचर कुछ रफ है,
थ्रेटनिंग है. फॉरबिडिंग एक्सटीरियर मीन्स अपना नेचर जो है वो थोड़ा थ्रेटनिंग टाइप है, मतलब लोगों को अच्छे तरह से मैं टैकल नहीं कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उनको लगता था. तो ये एस्ट्रोलॉजर सब अपना गेसिंग वर्क करता था और आगे वाले को जवाब देता था, आगे वाले को एडवाइस देता था और उसका फीस वो लेता था. लेकिन वो आराम से हो गया क्या? नहीं, उसके लिए उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा. लोगों के दिमाग की उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उसके बारे में उन्होंने एनालिसिस करना सीखा था. ये सब सॉफ्ट स्किल उसके पास थे. आगे देखेंगे. द नट्स वेंडर The nurse vendor blew out his flare and rose to go home. अभी हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि वहाँ नर्स वेंडर था. वेंडर मीन्स सेलर. जब अभी देखो जैसे दिन ढलता है तो हम अपना बिजनेस बंद करते हैं. तो अभी शाम का वक्त हो गया है. तो शाम के वक्त होने के कारण शाम का टाइम हुआ है, इसकी वजह से वो जो नट वेंडर है, सेलर है, उसने उसका जो दिया था उन्होंने वो बुझा दिया. ब्लू आउट हिज फ्लेयर. उसकी जो फ्लेम थी उसको ब्लू आउट किया क्योंकि ही वॉज पैकिंग अप हिज बिजनेस दैट डेज वर्क एंड रोज टू गो होम एंड he started going to his home. He packed his business, he packed his work and he went from there. So now astrologer was not getting the light because astrologer was working in the light of that nut vendor, but he had there was no light now, and so he was not getting the light. This was a signal for the astrologer to bundle up to. जैसे नट वेंडर ने अपना वर्क कवर अप किया था, वैसे एस्ट्रोलॉजर, दिस वाज द साइन फॉर द एस्ट्रोलॉजर, उसके लिए भी ये साइन था. नाउ आई हैव टू बंडल अप माई वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क. अभी एक वर्क कंप्लीट, आज के दिन का काम खत्म करने का टाइम है, ये साइन उसको मिलता था. सिंस इट लेफ्ट हिम in darkness except for a little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him. अभी उसकी तरफ छोटी सी ग्रीन लाइट का शाफ्ट उसकी तरफ आता था और अभी उसको पूरा पैक करना है एस्ट्रोलॉजर को, तो खाली उतनी लाइट में वो अपना पैकिंग अप कर रहा है. He picked up his covariations and paraphernalia. Paraphernalia here means small equipments which require to do the certain business or to do the particular work. जैसे एस्ट्रोलॉजर का जो इक्विपमेंट्स है हमने पहले वाले लेसन में देखा था, हम पहले पार्ट में देखा था. जो एस्ट्रोलॉजर का जो इक्विपमेंट है वो सब क्या हो गया, उसका पैराफेरनेलिया हो गया. स्मॉल इक्विपमेंट्स है जिसका आधार लेके एस्ट्रोलॉजर अपना काम कर रहा है. तो वो सब उन्होंने बंडल अप किया, कलेक्ट किया एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू द बैग. सब अपने बैग में उसने रखा. When the green shaft of light was blotted out, अभी वो भी शाफ्ट जो लाइट का आता था वो भी चला गया. He looked up and saw a man standing before him. अभी उतने में क्या हो गया, as he was leaving the place, suddenly he looked up, उन्होंने ऊपर देखा and he saw a man standing before him. उसके सामने एक आदमी खड़ा था. अभी he sensed a possible client. तुरंत उसके माइंड में थॉट आया, अरे ये तो मेरा क्लाइंट हो सकता है, he might become my client. So he started communicating to that man who was before him. He sensed means he understood that
Perhaps he might become my client and said, "You look so careworn." देखो अभी इसका स्टाइल, उसका सॉफ्ट स्किल देखो. "You look so careworn." आप बहुत वरीड दिख रहे हैं. हाँ? कोई तो चिंता आपको सता रही है. careworn means चिंता, वरीड. "It will do you good to sit down for a while and chat with me. If you would sit down before me, and if you would chat with me, definitely you would get a suggestion from me." He suggested that man. The other grumbled some reply vaguely. Vaguely means not clearly. So the man who was standing before him, he grumbled. He was not ready to accept his proposal. उसका मानना उसको स्वीकार नहीं था. The astrologer praised his invitation. लेकिन बार बार एस्ट्रोलॉजर उसको बोलने लगा. उसको थोड़ा इंसिस्ट किया उन्होंने कि नहीं, आपको अगर मेरे से बात किया तो शायद से आपके प्रॉब्लम का हल हो सकता है, ऐसा. He insisted again and again. Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, अभी उसको थोड़ा गुस्सा आ गया. उन्होंने क्या किया, अपना जो पाम है, अपना जो हाथ है, उसके आगे, उसके नोज के आगे, उसके आईज के आगे, थर्स्ट मतलब उसके आईज के आगे पुटअप किया. अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, सेइंग, अभी क्या बोलने लगा है वो अननोन पर्सन, "यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर." आप खुद को एस्ट्रोलॉजर मानते हो ना. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड. अभी तक ऐसा बोलने वाला कोई आदमी नहीं था. थोड़ा ऑरेगेंट लैंग्वेज है. "यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर." खुद को एस्ट्रोलॉजर मानते हो ना, ऐसा थोड़ा चैलेंजिंग टोन में वो बोला. सो एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, "दिस इज अ चैलेंज फॉर मी." The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light. अभी जो ग्रीन लाइट है, थोड़ा सा लाइट आता है, तो उस लाइट में उन्होंने क्या किया, टिल्टिंग मीन्स मूव, लिटिल बिट उन्होंने मूविंग किया और वो टिल्ट होके, उसके हाथ के ऊपर टिल्ट होके वो उसके हाथ की रेखाएं देखना उन्होंने चालू किया. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स palm towards the green shaft of light and said, "Yours is a nature." उन्होंने उसका जनरल एग्रीमेंट चालू किया जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. तो तभी उस क्लाइंट बहुत प्रॉम्प्ट था. उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था. वो तुरंत बोला, "स्टॉप दैट. I don't want such type of general agreement. I don't want such type of guessing work. I want the particular answer from you." मुझे आपसे पर्टिकुलर रीज़न चाहिए, पर्टिकुलर आंसर चाहिए. मुझे ऐसा जनरल स्टेटमेंट कुछ मत बोलो. क्योंकि वो बहुत होशियार था. आगे वाला जो आदमी था, क्लाइंट था, वो बहुत होशियार था, प्रॉम्प्ट था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था. वो सुपरस्टिशियस नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं था. तो वो बोला, "स्टॉप दिस, सच टाइप ऑफ आंसर आई डोंट वॉन्ट. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल." मुझे ऐसा कुछ बताओ विच इज़ ट्रू. वर्थ वाइल मीन्स विच इज़ रियल, विच इज़ ट्रू. कुछ सही हो ऐसा कुछ मुझे बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट. पिक्विट मीन्स अनॉयड, क्योंकि उसको वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया उसके ऊपर. मुझे ऐसा जवाब नहीं देना है, हवे में कुछ मत बोलो मेरे से. "I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money." So बोला, "I am charging only 3 pies and whatever I am advising you, definitely it is worthy for your money." आपका पैसा मैं जितना लेता हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको सही कारण बता दूंगा. At this, the other withdrew his arm, took out an anna. तभी उन्होंने अपना हैंड से एक आना निकाला अपने पॉकेट से, and flung it out to him. और उसकी तरफ उन्होंने वो दे दिया, saying, "I have some questions to ask." मेरे पास कुछ questions है. "You have to give me the answers of these questions. If I prove you are bluffing, you must return." अगर मुझे ऐसा पता चला कि इफ़ यू आर ब्लफिंग, अगर मुझे ऐसा पता चला कि आप मुझे ब्लफिंग कर रहे हो, आप फ्रॉडिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, अगर मुझे ऐसा पता चला कि आप
मेरे से चीटिंग कर रहे हो तो उसके क्या आर्ट है इधर देखो. Yes, our friend felt piqued means annoyed. I charge only 3 pice per question and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If you prove you are bluffing, you must return the anna to me with interest. अगर मुझे ये पता चला कि आप मेरे से चीटिंग कर रहे हैं तो आपको मेरा आना तो रिटर्न करना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है. तो अभी ये जो क्लाइंट है वो सिंपल टन नहीं है, हाँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग है, हाँ, वो थोड़ा थ्रेटनिंग टोन में उसके साथ बोल रहा है. तो अभी अपने एस्ट्रोलॉजर के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग केस मिल गया. अभी आगे देखते हैं. इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज? नो. और विल यू गिव मी 8 आनास? अभी वो बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज? अगर मेरा आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी लगा, मतलब ठीक लगा, तो मुझे 5 रुपीज दोगे? वो अननोन पर्सन बोलता है, क्लाइंट बोलता है नो. और ओके, फिर विल यू गिव मी 8 आनास? तो 8 आनास तो दे सकते हो ना. ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ओके, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर. अभी वो स्ट्रेंजर आदमी मतलब उसका क्लाइंट बोल रहा है प्रोवाइडेड यू, अभी मैंने एक आना आपको अगर दिया एंड यू गिव मी ट्वाइस as much as if you are wrong. If it proved you are wrong, if it proved that your answer is wrong, then you have to give me 2 times amount which was given to you by me. जो मैंने आपको अमाउंट दिया है, मतलब एक आना दिया है, तो आपको ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट आपको मुझे देना पड़ेगा अगर आप गलत साबित हो गए तो ऐसा चैलेंजिंग है. ये स्ट्रेंजर जो है, उसका क्लाइंट जो है, वो थोड़ा चैलेंज देने वाला है. द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. अभी पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट. जैसे हिस्ट्री में हम देखते हैं ना, पैक्ट, नंबर ऑफ पैक्ट वेअर देअर, तह म्हणतो आपण त्याला, अग्रीमेंट. द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड. अभी बोथ एक्सेप्टेड द पैक्ट आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. सम आर्ग्यूमेंट्स were there between them and then both of them accepted the pact. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. अभी जो सामने वाला आदमी है, he lit up his cheroot. Cheroot means cigar. Using the matchstick, he lighted his cigar. At that time, he was praying the heaven. He was praying the God, because really it was a challenge to an astrologer. So he prayed to the God. He remembered the God, and as he lighted that matchstick, the astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. In that matchlight, he got a glimpse of his face. Glimpse means quickly he saw the face of that man who was in front of him, who was stranger before him, because that there was not clear light. So in that matchlight, by the matchlight, he got the glimpse of his face. There was a pause as cars hooted on the road. Now, that time, what was the condition? What was the marketplace? How was the marketplace? It was not what. How was the marketplace? There was a pause as cars hooted on the road. Cars were stopped there. Zatka drivers swore at their horses. Swore मतलब किसी को हम bad words use करते हैं ना, तो उसको हम swore बोलते हैं. Zatka drivers. Zatka drivers means horse driven cart. जैसे हॉर्सेस कार्ट को खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं जत्का ड्राइवर्स. तो वो अपने हॉर्स के लिए चिल्लाते हैं, हॉर्स के ऊपर कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं.
तो वो भी नॉइज़ उस मार्केट प्लेस में चालू था. द एस्ट्रोलॉजर Zatka drivers swore at their horses. Swore is the past tense. And the babble of the crowd, babble means noise, babble of the crowd agitated the semi darkness of the park. उधर का जो सेमी डार्कनेस मतलब थोड़ा सा अंधेरा था, तो क्राउड एजिटेटेड, देयर वॉज ग्रेट क्राउड एंड दैट क्राउड एक्साइटेड और द क्राउड गेट्स वरीड बिकॉज ऑफ द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. अंधेरा हो रहा था, लोगों को सबको अपने अपने घर जाना था, तो सब लोगों को जल्दी था, अपने घर जाना था और डार्कनेस भी था, अंधेरा हो रहा था. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चिरुट. जो स्ट्रेंजर था, उसका क्लाइंट था, वो उसके सामने बैठा, सैट डाउन एंड सकिंग हिज चिरुट. ही वॉज सकिंग हिज चिरुट. चिरुट मीन्स ऑफकोर्स द सिगार. ही वॉज सकिंग मीन्स पुल इन टू द माउथ. वो अपना सिगार फूक रहा था, सकिंग द चिरुट and sucking a churut, puffing out. He was leaving that smoke, sat there ruthlessly, very roughly, arrogantly. He sat before the astrologer. The astrologer felt very uncomfortable now, seeing the nature of that stranger man. There was a great challenge to the astrologer, so he felt uncomfortable. उसको थोड़ा restless feel हुआ. Uncomfortable means restless. Here, take your Anna back. अभी एस्ट्रोलॉजर को लगा अभी इसके झमेले में ना पड़े तो अच्छा है, तो उसको बोलते हैं अपना अपना एना बैक, आप जो पैसा दिया है, एना मतलब करेंसी है, आप वो करेंसी वापस ले लो, अभी मुझे टाइम नहीं है. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस. ऐसे मुझे आदत नहीं है चैलेंजेस स्वीकारने की. आप जो चैलेंज मुझे दे रहे हैं, आई हैव नॉट such type of habit to accept such type of challenges. So take your Anna back. It is late for me today because already it is very late. I want to go at my home. He made preparation to bundle up and started collecting all his equipments. The other held his wrist and said, but जो stranger man था, he was very arrogant. He took his wrist in his hand. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा and said, you can't get out of it now. आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अभी. You dragged me in while I was passing. I haven't come by myself. You insisted me and that's why I stopped here. So now you have to give me the answer. I would not let you go here. I would not let you go from here without giving me answer. So that was the arrogancy of that unknown man, unknown stranger. And this was challenge to the astrologer. You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grave and his voice shook. अभी वो थोड़ा सा घबरा गया, shivered, and his voice shook. There was a little bit tremble in his voice. थोड़ा आवाज़ उसका वीक हो गया, क्योंकि वो थोड़ा अंदर से डर गया. He gave a threat to him. That stranger was giving a threat to him. The other thrust his palm in his face. उसके फेस के सामने उन्होंने अपना पाम पकड़ा, हाथ पकड़ा, and said, अभी स्ट्रेंजर बोल रहा है, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन. चैलेंज मतलब चैलेंज, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप. अभी उन्होंने अपना काम चालू किया, क्योंकि अभी उसके आना हुआ तो कोई चारा ही नहीं था. देयर वॉज नो एनी अदर अल्टरनेटिव. ही हैज़ टू फेस दैट स्ट्रेंजर. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड हिज थ्रोट ड्राइंग अप. उन्होंने अपना गला साफ किया, उसका चैलेंज स्वीकारा और गला साफ किया. देयर इज अ वुमन. अभी उन्होंने सेकेंड जनरल स्टेटमेंट चालू किया. अभी देखो, अपना जो स्ट्रेंजर क्लाइंट है वो बहुत प्रॉम्प्ट है. तुरंत उन्होंने बोला स्टॉप. सेड दादा, नहीं, मुझे ऐसी इस तरह का जनरल स्टेटमेंट नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी गेस ऑफ यू. मुझे कोई आपका गेसिंग वर्क नहीं चाहिए. आई वॉन्ट द परफेक्ट आंसर. Particular reason.
आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, इस तरह का स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए, मतलब हवे में कुछ नहीं बोलना है, मुझे पर्टिकुलर आंसर चाहिए. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? जस्ट आंसर मी इन वन वर्ड. विल आई बिकम सक्सेसफुल इन माई सर्च? Yes or no? I want only yes or no and not any other general statement of you. अभी देखो बहुत प्रॉम्प्ट है. आंसर दिस एंड गो. मेरा आंसर दे दो एंड देन आई विल लेट यू गो फ्रॉम हियर. तो मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल यूर कॉइन्स. नहीं तो आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा. जितना भी पैसा आपके पास है सब मुझे वो आपको ईल्ड करना पड़ेगा. डिस्कॉर्ज मतलब ईल्ड, सरेंडर, आपको मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन. इनकैंटेशन मतलब जैसे हम कुछ मंत्रोच्चार करते हैं ना, तो वो नाटक कर रहा है. कुछ इनकैंटेशन, कुछ मंत्र वगैरह बोलने का वो थोड़ा नाटक कर रहा है. मैजिकल वर्ड्स, थोड़ा उसका नाटक चला है, क्योंकि अभी उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था. सो अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल यूर कॉइन. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन. इनकैंटेशन मीन्स मंत्रोच्चार, मैजिकल वर्ड्स, एंड रिप्लाइड ऑल राइट. तो बोला ओके, आई विल टेल यू, आई विल एक्सेप्ट यूर चैलेंज, आई विल स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग. अभी उन्होंने भी एक उसको एक उसके सामने एक क्ल्यू रखा. अगर मैंने बराबर आंसर दिया, अगर आपको वो कन्विंस हो गया, मतलब आपको ट्रू लगा, रियल लगा, तो मुझे आपको 1 रुपया देना पड़ेगा. इतना फीस मेरा रहेगा, क्योंकि आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रुकवा रहे हो. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक. तब तक अगर आप मुझे 1 रुपया नहीं दोगे तो मैं मेरा मुंह खोलने वाला नहीं हूँ. जो चाहे आप करवा लो. ऐसा एस्ट्रोलॉजर भी उसको बोलता है, कंडीशन रखता है उसके सामने. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर अग्रीड. अभी थोड़ा गुड डील ऑफ हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग हो गया दोनों में. हाँ ना ऐसा बार्गेनिंग हो गया. हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग. द अदर अग्रीड, तो सामने वाला बोला, तो स्ट्रेंजर बोला ओके आई विल गिव यू 1 रुपी. द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड. एम आई राइट? एक दिन आपके लाइफ में ऐसा हुआ था कि आपको मरने के लिए छोड़ दिया था किसी ने. एम आई राइट? मैं बराबर बात कर रहा हूँ ना? ऐसा उसको बोलता है. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपने 3rd पार्ट में देखेंगे, विच वुड बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. रीड दिस लेसन and try to understand and solve the activities which I will give you later. Thank you.